सिलसिला चल पड़ा है जड़ावाला शहर में और उसके बाद जो हुकूमती अहलकार है, कानून जो हरकत में आया वो आपने देखा और ये ख़बरें आप तक पहुंच रही हैं। इस वक्त मैं जड़ावाला के एक नवाही गांव में मौजूद हूं और मैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में सबसे पहले एक मुतासरा लड़के के घर जाऊंगा। नौजवान के मामू के घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये मेहनत मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और माल मवेशी पाल कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। हम आए हैं उस मुद्दे पर, उसको पर बहस करने के लिए ऐसा क्यों हुआ और इनके बच्चे के साथ, इनके भांजे के साथ किन लोगों ने ये बदसलूकी की और इसकी वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक सर, थोड़ी सी तफसील बताइएगा और आपके भांजे का नाम क्या था और वो आपके घर आया और क्या हुआ उसके बाद थोड़ी सी तफसील से हमें ज़रा आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा भांजा जिहड़ा सी ना वो मिलने वास्ते साडे कोल आया सी सन 2017 च चौथे महीने की 2 तरीक वाले दिन पानी लैन गया। तकरीबन 12 बजे का टाइम सी। अगे काशव ते अक पठान, काशव मौलवी वाले दा सी ते अक पठान जिहड़ा सी वो हैगा सी 62 दा। ये लियाउण वाला काशफ आ वा उहनूं लैके उत्थे जदों काशफ मुहम्मद वल्द गफूर ये उत्थे बेड़ी ते खड़े आ जां साडे मुंडे ने साइकिल खड़ा कीता वा। एक ने उहदे कंड पिछे पिस्टल रखता, दूजे ने उहदे ना पंप एक्शन रखती और उहनूं कुੱਟਣਾ शुरू कर दिता। कुੱਟਦੇ फिर ये लै गए एक कब्रस्तान दे लागे वीरान कोठा सी, उहदे विच जाके इन्हां ने ਉਹਨੂੰ ਬਦਫੇਲੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 5000 ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੈੱਟ ਤੇ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ 5000 ਚੋਰੀ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਠੀਕ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 10000 ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਦਫੇਲੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਦਫੇਲੀ ਕੀਤੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਦਫੇਲੀ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਕਟਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਉਮਰ ਹਯਾਤ SHO ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਜਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਵਾ। ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਾਂ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਥਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਣੇ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ। ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करे, उन्हें बड़ी ईमानदारी ना साढ़े वास्ते काम किया वा। अब कितने लोग पकड़े गए हैं जो इसमें जो मेन मुलजिमान है वो पकड़े गए हैं? आप मेन मुलजिमान 6 ਜਾਂ 7 पकड़े जाएंगे, लेकिन ਜਿਹੜੇ मसला 2 ही आ साढ़े भांजे दे नाल, बाकी होर आना हैगे आ। मेरे भांजे नाल ਜਿਹੜੇ बदफेली करने वाले ना ये 2 बंदे आ। उदा एक ग्रोह ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ सारा। अब तक आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि कितने बच्चों के साथ किया, कितने लड़कों के साथ किया, तादाद कुछ? तो जो मीडिया है वो ये नैट ये गल दसदा वा, जी असीं नैट के उत्ते देख चुके हैं
ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਬੱਚੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, 1000 ਆ, 500 ਆ ਕਿ 2000 ਆ। ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ये इनका यही काम था कि ब्लैकमेलिंग करना और वो बच्चों को ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਏ ਆ ਕੁਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫੇਲੀ ਕੀਤੀ, ਬਦਫੇਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸਕੋ ਮਾਰ ਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਟਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। अब ये दोनों कहाँ हैं, जेल में के हवालात में? हवालात में तफ्तीश की जा रही है। इलाके के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन मेरे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे इस मामले में सर? सर ये जो भी मामला इन लोगों ने बोला है वो बिल्कुल सही है और वाकई ये हुआ। हम भी 2-3 महीने से सुन रहे हैं। हम ट्रक ड्राइवर हैं, हम 8 दिन के बाद घर पे आते हैं, लेकिन हम लोग जो हकीकत होती है वो सामने आ जाती है। और हर बंदे की यही बात है, वो भी गांव के, ये भी गांव के, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है इसमें। तो ये वाकई ये कुछ हुआ है, जो हर बंदा बोल रहा है वो हकीकत में हुआ है। मज़ीद कुछ कहेंगे, कुछ किसी से अपील करेंगे आप? मियाँ शहबाज शरीफ अगे मेरी अपील आ, जस्टिस अपील आ मेरी तमाम ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾ, ਤਾਹरुल ਕਾਦਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ये हर काम हर बच्चे बहुत मेहरबानी, इनको सिर्फ इंसाफ चाहिए, चाहे कोई भी दे। इनको बड़े बड़े लीडर्स के नाम लिए इन्होंने अपने मुंह से, लेकिन इनको सिर्फ इंसाफ चाहिए। अभी हम जाएंगे जड़ावाला के चौक में, कुछ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एहतजाज हो रहा है, और वो किस हवाले से मज़ीद जो खुलासा होगा, जो बात होगी, जो हक़ाइक़ होंगे, आगे चलकर हम आपको दिखाएँगे। कि एक जो बैनर है वो आवेदा है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आज तमाम जो असातिज़ा हैं और उनसे गुजारिश है कि वो अपनी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ और आबदा अहमद के कत्ल के ख़िलाफ़ आज के एहतजाज में भरपूर शिरकत करें। अभी जो बच्चों का जो सिलसिला था, जो वीडियोस, जो स्कैंडल्स जो सामने आया, वो अभी थमा नहीं कि आबदा परवीन जो कि MA की स्टूडेंट है, आबदा उसको मार दिया गया, ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया, और उसके बाद उसकी लाश यहाँ के मकामी खेतों से मिली। यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, इनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ और आबदा जो अपने घर से निकली थी क्या कहकर निकली थी, और अब ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस का क्या, पुलिस का सिर्फ इतना ही काम है कि FIR दर्ज करे और उसके बाद मामले को दबा दिया जाए। इस पर भी मैं बात करूंगा मकामी SHO, और मैं आगे चलकर एक रियलिटी चेक आपको दिखाऊंगा कि इस वीडियो स्कैंडल के बाद जो वीडियो स्कैंडल यहाँ से निकला, जड़ावाला से सर पकड़ा, ऐसा क्यों हुआ, इसकी एक वजह है, और ये बहुत बड़ी वजह, ये मैं आगे चलकर आपको दिखाऊँगा। आइएगा कि आप किस थाने में तैनात हैं? मैं SHO थाना सिटी जड़ावाला हूँ। ये जो बच्चों का मामला चला है जड़ावाला से, थोड़ा सा बताएंगे कि इसकी रियलिटी क्या है और अब तक जो कार्रवाई की गई है कहाँ तक पेशरफ्त हुई है, और कितने इसमें जो अफराद हैं उनको हिरासत में ले गया, किन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, थोड़ी सी डिटेल हमें बताएं। ये एक्चुअली जो अभी हमें नोटिस में आया है, ये कोई 2-3 साल से एक वकूआ हो रहा है। उनकी नोटिस में आया था मेरी पोस्टिंग से पहले यहाँ, उस वक्त उन्होंने एक्शन लेके कुछ बंदे पकड़ लिए थे, उनके खिलाफ पर्चा दे दिया गया था। एक 302 ब्लाइंड मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसमें ये इंकशाफ हमें पुलिस को था, हमें किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया था, कोई कंप्लेन नहीं था। हमने खुद इस वकूए को ट्रेस किया, फैसलाबाद पुलिस ने खुद इस वकूए को ट्रेस किया, ट्रेस करके उन मुलजमों को पकड़ा, उनको फिर जेल भेजा। उस कत्ल में भी वो जो कत्ल में शामिल थे और 2 मुदई हमें ट्रेस हुए थे, उन मुकदमों में चलान किया। फिर अब उसके हम पीछे थे और मुदईयों को ट्रेस कर रहे थे। फिर उसके अलावा हमने 7 और मुदई भी ट्रेस किए, उनको ट्रेस करके फिर और मुलजम भी पकड़े। हम टोटल कोई 5-6 मुलजम हम गिरफ्तार कर चुके हैं, 2 बकाया जिन पे रेड किए जा रहे हैं इंशाल्लाह। आप एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते क्या आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि अब तक कितने बच्चे इससे मुतासिर हुए हैं और टोटल तादाद कितनी है, आप कुछ कह सकते हैं, और मुलजिमों की कितनी तादाद है, क्योंकि ये एक से बढ़ते गए, जैसा कि आपने कहा कि 2 साल के दौरान ये सब कुछ हुआ। देखिए मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता,
लेकिन उनमें से अननोन बहुत से हैं जो मुद्दई हैं, जो मुलजमों ने हमने उनकी इंटरोगेशन किया, उनमें से कई को वो जानते ही नहीं है कि सरे राह कहीं मिल गया, उसके साथ उन्होंने बलफेली कर ली। क्यों ऐसा वो क्यों करते थे? क्या उनको शौक था या बिजनेस था? क्यों, क्या सिर्फ ब्लैकमेलिंग के कारोबार? जो हमें नजर आ रहा है वो इल्लत है, आदत है, उनकी आदत थी वो। और बाज मतलब इस तरह का कुछ लग रहा है। मजीद बाकी जो मेन किरदार हैं एक दो, उन पर रेड करें जो बकाया है, वो सामने आ जाएगा। बड़ी टीम बन गई है एसपी साहब की और एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन की, वो इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे। आपको क्या लगता है कि मेन किरदार किसका था? वो शख्स आपकी हिरासत में इस वक्त है या नहीं है? आकब पठान हमारी हिरासत में था, जो वीडियो बनाता था, जिसकी वीडियो डिस्क्लोज हुई है, जिसके जब उसको गिरफ्तार किया तो उसके फाइन से, टेलीफोन से हमें पता चल गया था। उसी वो मेन किरदार हमारे पास है, लेकिन बाकी लोग भी पकड़े गए हैं। तो इस तरह डॉन है वो, बिल्ला अजीब सा उसका नाम है, वो भी एक एक्यूज है, उसको उस पर रेड कर रहे हैं, अभी भी रेड जारी है, हो सकता है थोड़ी देर में पकड़ा जाए, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने कहा है कि ये एक लत है, एक बीमारी है, या आप कह लें कि एक आदत उनको है ये सब कुछ करने के लिए, और ये जाल फैलता गया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब मुझे ये बताएं कि ऐसा हो क्यों हुआ? ज़िला ये जो तहसील जड़ावाला है, इसमें ऐसी क्या एक्टिविटीज़ है नौजवान लड़कों की कि वो इस तरफ जो है वो आ रहे हैं? क्या वजह है, कोई बता सकते हैं? यहाँ पे क्या माहौल है यहाँ पे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये बहुत छोटा है और मैं आपको इसकी हकीकत भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पास इसकी भरपूर, मैं कहता हूं कि मेरे पास इसके ठोस सबूत मौजूद है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं ये इसका कोई जवाब दूंगा तो कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि मुझसे बहुत सीनियर लोग जो हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपके इलाके में ये काम हो रहा है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। खास पूछना चाह रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, कि ऐसा कुएं क्यों हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं अगर अभी बताऊंगा, मेरे इल्म में है, मेरा कुछ ज़हन है, लेकिन वो कबल अज़ वक्त है। जब तक मेरे सीनियर्स को जो सॉर्ट आउट करके फाइनलाइज नहीं करते, हम इसको बताएंगे इंशाल्लाह पब्लिक को। मैं आबिद साहब माहौल की बात कर रहा हूँ। जड़ावाला का माहौल क्या है यहाँ पर? क्या एक्टिविटीज़ है यहाँ पर? बच्चे वीडियो गेम्स में जाके बैठते हैं, या कुछ ऐसे यहाँ पे शॉप्स हैं, या कुछ ऐसे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर बच्चे जाकर बैठते हैं और ये गलत एक्टिविटीज़ में जाते हैं और वहाँ से सीखते हैं, वहाँ से चीज़ें पिक करते हैं। हमने अपने एक नुमाइंदे को खुफिया कैमरा लगाकर यहाँ पर कुछ शॉप्स पर भेजा जहाँ पर ब्लू फिल्म्स दिखाई जाती हैं, और उस कैफ़ेज़ में तकरीबन 1000 से 1500 तक मूवीज़ मौजूद हैं उनके कंप्यूटर में, और वो शॉप्स हमें पता है, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी। इनको क्यों नहीं पकड़ा? ये आपकी हदूद में, इस चीज़ को क्यों नहीं कवर किया आप लोगों ने? किसी क्राइम की वजह एक नहीं होती, एक चेन होती है, 1 2 3 4 5 6 7। आपने जितनी बातें बताई हैं ये सारी हो सकती हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता। कोई स्पेसिफिक एक वजह नहीं होगी कि किसी जगह लोग भूख की वजह से क्राइम करते हैं, किसी जगह लोग तालीम की कमी की वजह से करते हैं, किसी जगह लोग क्राइम सोसाइटी की वजह से करते हैं, किसी जगह लोग वालिदैन की लापरवाही की वजह से करते हैं। अभी सिर्फ सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। आपके ही हदूद में ये कैफ़ेज़ मौजूद हैं, हमने रिकॉर्डिंग की, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो ब्लू फिल्म्स दिखा रहे हैं बाकायदा, उनकी सर्वर में ये चीज़ें मौजूद हैं। मेरी बात, लोग घरों में जो ब्लू फिल्म्स देखते हैं, आपने बड़ी अच्छी बात मेरे नोटिस में लाई है, इसको इंशाल्लाह राउंड अप करेंगे, चेक करेंगे। पहले भी इनको बंद करवा दिया गया था, फिर लोग आ जाते हैं। अब आप आपके मोबाइल में इंटरनेट है, आप इंटरनेट पे कुछ देखें। मैं इंटरनेट मोबाइल की घर की बात नहीं कर रहा, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जिसकी आपकी जिम्मेदारी आबिद साहब के, आपके पे बैठने की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे 30 रुपए घंटे के हिसाब से ये सब कुछ दिखाया जाता है। रिक्वेस्ट सुन लें कि कोई बंदा जाता है कंप्यूटर से अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, वो बैठ के वहाँ जो कुछ करता है, तो SHO को तो नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह इसके खिलाफ करेंगे कार्रवाई। मैं कहता हूँ हर कंप्यूटर पे ये ढूंढी जा सकती है। ये जरा आप देखिएगा। मैंने कहा जी, आप देख लें। मैंने कहा जी कि हर चीज देखी थी, इस पे इसका तदारक करेंगे। आपने नोटिस में ला दिया, पब्लिक के सामने मुनासिब नहीं है, आपने नोटिस में ला दिया, इसका इंशाल्लाह तदारक करेंगे। ये काम खारिज हो बहुत सारे और इससे बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये भी करेंगे इंशाल्लाह।
गलत ना जवाब दें। जिसकी आप हमने आग ना निशानदेही- लगाएं, मेहरबानी करें। अच्छा आग ना लगाएं। अच्छा मैं क्या बता, मैं आपसे ये बात करूँ करेंगे, कि मैंने ये कहा जी, चीज़ें एक्शन मौजूद है, लेंगे। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें मौजूद है, मैंने कहा उसकी सब वजह मैं कुछ बता रहा हूँ, करेंगे। मैंने सिर्फ उसकी वजह पूछी है कि मैंने इस पूछा कि सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह, इसको ठीक करेंगे, हर चीज को करेंगे, आज इनके खिलाफ घेराव होगा। पूरा होगा। जो मैंने बात की आपकी समझ में आ जरूर चुकी होगा, है, जरूर होगा। मुझे लगता है कि इससे आपको फर्क समझ में आ होगा। चुकी जी मुझे काफी समझ में आ गई। है। आज करेंगे कार्रवाई। जी इंशाल्लाह जरूर करेंगे। चले जी।